الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل شانه في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات کبریائی و بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق سزاوار ہے جو ہم سب کا اس کائنات کا خالق مالک رازق مربی اور پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی و بارک علیہ. محترم و معزز بزرگوں نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی دو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اسی تعلق سے میں نے اپنا ایک عنوان چنا. وہ عنوان ہے کہ ہم صرف قرآن و سنت ہی کی اتباع کیوں کریں، وجہ کیا ہے. آج ہم اور آپ جب معاشرے میں طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہر انسان کسی نہ کسی مسلک کو لے کر کے فالو کر رہا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی مسلک کو لے کر کے اپنے آپ کو اس کی شناخت بتا رہا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں ان سے وابستہ ہوں، میں ان کے طریقے پر چلنے والا ہوں، میں ان کا مقلد ہوں. لیکن میرے بھائیوں، کیا دوسرے کی اتباع کرنا، دوسرے کی تقلید کرنا، کیا قرآن و سنت کے اندر ہمیں اس بات پر آمادہ کیا گیا ہے یا نہیں؟ آئیے اسی سوال کا جواب میں آپ کو انشاءاللہ مختصر وقت میں دینے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ
परवरदिगार को हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हाज़रीन जुमा, रब कायनात ने जब से हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इस कायनात अर्दी के अंदर मबऊस फरमाया, तब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी जिंदगी गुजारने का एक निज़ाम मुतय्यन कर दिया कि अगर इस कानून के मुताबिक, इस हिदायत के मुताबिक अगर तुम चलोगे तो कामयाब व कामरान हो जाओगे। अगर इस कानून के खिलाफ वर्जी की, इस कानून को तुमने तोड़ दिया, अपने मनमर्जी के मुताबिक तुमने जिंदगी गुजारी, तो याद रखो नाकाम व नामुराद हो जाओगे, दुनिया और आखिरत तुम्हारी दोनों बर्बाद हो जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके लिए कानून बनाया है। गोया कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप इस कानून की पासदारी करते हुए इस कायनात अर्ज़ी के अंदर जब तक रहें उसी के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। हाज़रीन किराम, अभी मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद एक आयत करीमा पढ़ी थी। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ हिदायतें नाज़िल की। अल्लाह ने कहा अगर तुम उस हिदायत की पासदारी करोगे, उस हिदायत पे इत्तिबा करोगे, अल्लाह ने कहा फमन तबिअ हुदाया, जिसने उस हिदायत की इत्तिबा की, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, अल्लाह ने कहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दुनिया के अंदर ना उसको कोई खौफ होगा, ना दुनिया के अंदर वो किसी से लर्जेगा, डरेगा, और ना ही आखिरत के अंदर वो गमगीन होगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो फैसला कर दिया कि अगर तुम्हें दुनिया के अंदर पासदारी चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया के अंदर हुकूमत चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया के अंदर अच्छी जिंदगी चाहिए, तो लोगों रब्बे कायनात की तरफ से जो हिदायत आई है उस हिदायत की तुम पासदारी करो, उस हिदायत के मुताबिक तुम अपनी जिंदगी गुजारो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको हुक्म दिया। लेकिन दूसरी आयत करीमा के अंदर आप देखें कि रब्बे कायनात ने उन लोगों को वईद सुनाई जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो लोग अल्लाह की हिदायत को छोड़ करके गैरों के तरीके को इख्तियार करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को वईद सुनाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फमन इत्तबा हुदाया फला यज़िल्लु वला यश्क़ा। आप जाकर के सूरह ताहा पढ़ें, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो इंसान हिदायत की, मेरी जानिब से जो हिदायत तुम्हारे पास आई है, उस हिदायत की अगर इत्तिबा करोगे फला यज़िल्लु वला यश्क़ा, ना तो तुम गुमराह होगे, ना तुम्हारे अंदर मशक्कत आएगी, और ना ही वला यश्क़ा, और ना ही मशक्कतों के अंदर तुम क्या नाम है आओगे, मशक्कतें तुम्हारे पास आएंगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया। लेकिन अल्लाह ने कहा वमन अअरज़ अन ज़िक्री, मेरा जिक्र आ गया, मेरी हिदायत आ गई किसके पास, जो मेरी हिदायत को जान लिया कि असल में हकीकत क्या है, कुरान और सुन्नत हमें क्या बता रहा है, किस तरीके पर हमें अपनी जिंदगी गुजारने पर आमादा कर रहा है। अल्लाह ने कहा कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से एराज़ कर देगा। हिदायत आ गई, उसके बावजूद भी एराज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि फला का कौल उसके खिलाफ है, फला इमाम का कौल उसके खिलाफ है। रब्बे कायनात ने कहा वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अ'मा, हम उसे कल क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, दुनिया की जिंदगी भी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ने कहा वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशा, उसकी मईशत को हम तंग कर देंगे, ज़ंका, हम दुनिया के अंदर उसे परेशानी के अंदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देंगे। ये रब्बे कायनात ने हमसे और आपसे वादा किया कि अगर अल्लाह की हिदायत के मुताबिक अगर तुम अपनी जिंदगी नहीं गुजारोगे, तुम्हारी दुनिया बर्बाद होगी और आखिरत तो तुम्हारी बर्बाद होगी। आज देख लीजिए मुसलमान, आज इन्हीं दोनों आयतों पर गौर कर लीजिए कि आज हमारे मुसलमानों की अक्सरियत आज कुरान और सुन्नत से हट करके गैरों के तरीके को अख्तियार की हुई है। आज हमारे मुसलमानों की अक्सरियत कुरान और सुन्नत को छोड़ करके, उसके इत्तिबा को छोड़ करके आज गैरों की तकलीफ में मुलव्वस है। मुसलमानों, हम और आप सुरखरुई कैसे पा सकते हैं? कामयाबी हमारी मुकद्दर कैसे बन सकती है? हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? अगर कामयाबी चाहिए तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी होगी, अल्लाह के भेजे हुए हिदायत पर अमल करनी होगी, उसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। मेरे भाई, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हिदायत है क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आयत करीमा के अंदर हिदायत का तस्करा किया, आखिर ये लफ्ज़ हिदायत है क्या? आइए कुरान करीम से हम पूछते हैं कि हिदायत का माना मफ़हूम क्या है, हिदायत से मुराद क्या है? हिदायत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसको कहा? अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल अहसनल हदीस, के लोगों वही रब्बे कायनात
جس نے تمہارے پاس سب سے بہترین کتاب کو نازل کیا، سب سے بہترین بات کو نازل کیا۔ اللہ نے کہا کتابا متشابہا مثانی تقشعر من جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ نے کہا اور اس کتاب کے اندر جو اس کے عناوین ہیں، جو اس کے موضوعات ہیں، وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اور آپ نے پڑھا ہوگا قرآن تو ہمیں بہت ساری چیزیں وہی سیم ٹو سیم کئی جگہ پر آئی ہوگی۔ مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا، وہ پورا واقعہ آپ اگر پڑھیں گے تو کچھ واقعہ آپ کو پہلے پارے کے اندر ملے گا، آپ اور آگے جائیں گے 8ویں پارے کے اندر آپ کو ملے گا، اور آگے جائیں گے اور بھی دیگر پاروں کے اندر ملے گا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے متشابہ آیتیں کیوں نازل کی بار بار؟ تاکہ ہمارے دل لرز جائے، ہمارے دل خوف کھا جائے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو کہ اللہ رب العالمین آخر ان کا تذکرہ کر کیوں رہا، آخر آدم کو نکالنے کا جنت سے اس کا تذکرہ کیوں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ ایک نافرمانی کی بنیاد پر رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ میرے بھائیوں، یہ بار بار آنے کا مسئلہ کیا ہے؟ بار بار آنے کا تذکرہ کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ سے خوف کھائیں، اللہ سے ڈرے، ہمارا دل، ہمارے رونگٹے اللہ کے خوف سے لرز جائیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اسی لیے رب کائنات نے بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کیا اپنی کتاب ہدایت کے اندر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم تلین جلودہم الی ذکر اللہ، جن کے دل اللہ رب العالمین کے دل سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ذالک ھدی اللہ، اگر اللہ کا ذکر آتا ہے، اگر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اگر ہمارے دلوں کے اندر خوف الہی پیدا ہو رہی ہے، اللہ کی قسم رب کائنات کا یہ فرمان ہے ذالک ھدی اللہ، وہی وہ شخص ہے جس کو رب کائنات نے ہدایت دی۔ اور اللہ نے آگے کہا کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس سے کوئی ہدایت سے روک نہیں سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ہدایت کو جانیں، اللہ کی ہدایت کیا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہدایت سے مراد رب کائنات نے قرآن مجید کو لیا۔ آئیے اور واضح طور پر میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اٹھا لیجئے پہلا پارہ، شروع کی آیت پڑھ لیجئے۔ رب کائنات نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ لوگوں یہی وہ کتاب ہے۔ اب اللہ نے کتاب کا تذکرہ کیا یہاں پر، دیگر آیتوں کے اندر اللہ نے ذکر کا تذکرہ کیا، یہاں اللہ نے ڈائریکٹ کہا یہی وہ کتاب ہے۔ کون سی کتاب؟ کون سی ہدایت والی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ ابھی آگے آیت کے اندر اس سے جو وضاحت موجود ہے، اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ایک بھی حرف اس کے اندر غلط نہیں ہو سکتا ہے، شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ ھدی للمتقین، رب نے کہا لوگوں سن لو، یہی کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم ہدایت پانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت پر آ جائے، اللہ کی قسم قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ اعلان ہے، اگر کوئی کتاب ہے کتاب ہدایت تو قرآن مقدس ہے۔ کیونکہ آپ پڑھیں دوسرے پارے کے اندر آپ جائیں، اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ رب العالمین نے کہا یہی وہ کتاب ہے جو رمضان کے اندر نازل کیا گیا۔ کیوں نازل کیا گیا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب ہم اس کتاب ہدایت کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پر جائیں، غیروں کے اقوال سے ہدایت طلب کریں، کبھی ہم ہدایت نہیں پا سکتے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہدایت کو ڈھونڈیں اور اللہ کی کتاب پر عمل کریں اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں۔ میرے بھائی جتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بہت سارے لوگ یہ اشکال کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تو تذکرہ نہیں، تو کیا صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ کیونکہ ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی وما ينطق عن الهوى، اے لوگوں سن لو، میرا محبوب، میرا پیغمبر جو کچھ بولتا ہے اپنی خواہشات نفسانی سے نہیں بولتا، اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کہتا، ان هو الا وحی یوحی، گویا کہ جو اس کے پاس وحی آتی ہے وہی لوگوں کو بتاتا ہے، وہی
लोगों के सामने बयान करता है। पता ये चला कि कुरान और सुन्नत ये दोनों हमारे लिए हिदायत का जरिया है, हिदायत का मरकज है। अगर हम इन दोनों को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज कर लेंगे, यकीन मानिए मेरे अजीजों, हम और आप कामयाब व कामरान हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि हिदायत इसी में, उसके बावजूद भी अगर इससे एराज करते हैं, अल्लाह की कसम दुनिया की जिंदगी तंग हो जाएगी, दुनिया के अंदर परेशान हो जाएंगे, दुनिया के अंदर मुसीबतों के पहाड़ हमारे ऊपर टूटेंगे और आखिरत तो हमारी तबाह और बर्बाद हो ही जाएगी। मेरे भाइयों, आइए चंद चीजें मैं आपके सामने बयान कर दूं कि हम कुरान और सुन्नत ही की इत्तिबा क्यों करें। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस बात का हुक्म दिया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया? जी हाँ मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सिर्फ इसी बात का हुक्म दिया कि लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीजें तुम्हारे सामने भेजी हैं, तुम्हारे पास भेजी है, उन्हीं चीजों की तुम्हें इत्तिबा करनी है, उनके अलावा किसी और चीज की इत्तिबा नहीं करनी। ये भी लफ्ज मौजूद है, किसी और चीज की, किसी और शख्स की इत्तिबा नहीं करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया कि इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। अल्लाह ने कहा कि लोगों इत्तिबा करो, पैरवी करो, किसकी, किस चीज की? मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है। उसके बाद अल्लाह ने कहा वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और ए लोगों, अल्लाह के अलावा किसी औलिया की, किसी दोस्त की, किसी बुजुर्ग की, किसी पीर फकीर की, किसी अइम्मा की आपके ऊपर इत्तिबा वाजिब नहीं है। मुसलमानों सुन लो, इस आयत करीमा के अंदर रब ने साफ तौर पर इस बात का तस्करा कर दिया, वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, अल्लाह के अलावा किसी और के इत्तिबा के लिए जायज नहीं। मेरे भाई, संजीदगी से गौर करने की जरूरत है, संजीदगी से हमें और आपको सोचने की जरूरत है, जज्बातियत में आने की जरूरत नहीं है। अपने दिल को खटाने, अपने दिल को टटोले, क्या वाकई में जब रब का फरमान ये कह रहा है तो क्या हमारे उलमा सही कह रहे हैं? जो हमें दूसरों की इत्तिबा करने पर आमादा करते, दूसरों की क्या नाम है तकलीफ करने पर आमादा करते, क्या हमारे उलमा सही है? बिल्कुल गलत है इस मामले में। सुन लो मुसलमानों, आप उनसे राह हिदायत अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पढ़कर ही ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को छोड़ करके आप ये सोचें इस मसले में हमारे उलमा ने यह आसानी कर दी, फला ने यह आसानी कर दी, फला ने यह आसानी कर दी, कुरान और सुन्नत में उसकी मुखालिफत मौजूद है। मेरे भाइयों, ये आसानी आपके लिए बाइस अज़ाब बन जाएगा, बाइस रहमत कभी नहीं बन पाएगा, इतना याद रखो मुसलमान। इसलिए गौर करने की जरूरत है, हमें और आपको सोचने की जरूरत है कि रब ने खुद कुरान मुकद्दस के अंदर कहा कि सिर्फ उसी चीज की इत्तिबा करो जो तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे तरफ नाजिल की गई। उसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी शामिल है, जैसा कि मैंने आपके सामने दो आयत करीमा पढ़ करके बताया। इसी तरीके से आप देखें मुस्नद अहमद के अंदर गालिबन एक रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें कोई भी चीज बयान करते थे, कुछ भी बोलते थे हमारे सामने, हम उन सारी चीजों को लिख लिया करते थे। फिर कहते हैं कि कुरैश के कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बशर हैं, उनसे भी खता हो सकती है, उनसे भी गलती हो सकती है, आप हर चीज को ना लिखा करें। कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बताया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाथ की उंगली का इशारा अपनी जुबान की तरफ किया और कहा कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है, मोहम्मद की जुबान से जो निकलता है वो सच निकलता है और सच के अलावा कभी झूठ, कभी ओल पोल नहीं निकलता। ये अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि अगर हमें अपनी जिंदगी को सही मानों में संवारना, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी को समेटना है, अल्लाह के बंदो कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। इसी तरीके से दूसरी चीज, दूसरी बात, हम कुरान और सुन्नत ही की इत्तिबा क्यों करें? क्यों ना हम किसी इमाम की पैरवी करें, क्यों ना हम किसी इमाम की तकलीफ करें? वजह क्या है? वजह मुझसे सुनो। वजह यह है मुसलमानों कि कुरान और सुन्नत के अलावा कोई ऐसी किताब नहीं है इस कायनात अर्जी के अंदर
जिसके अंदर गलतियां ना मौजूद हो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बे कायनात के फरमान के अलावा किसी का ऐसा फरमान नहीं है जो मुकम्मल सच हो। ये मासूम अनिल खता, कुरान और सुन्नत ये मासूम अनिल खता, इनके अंदर एक भी गलती, एक लफ्ज की गलती आप नहीं पा सकते। इसीलिए हमें इसकी इत्तिबा करनी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर बयान फरमाया कि लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम। अल्लाह ने कहा तुम्हारे सारे अमाल रायगा और बर्बाद हो जाएंगे अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करोगे। मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करोगे, रब का ये फरमान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह ने कहा कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मोमिनो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इताअत किसकी करनी है? सिर्फ अल्लाह की। इताअत किसकी करनी है? सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका की। उसके अलावा हमें किसी और की इताअत नहीं करनी। आज सुन लो अंजाम क्या होगा अगर किसी और की आप इत्तिबा कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत को छोड़ करके किसी और के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वला तुब्तिलू अमालकुम, तुम्हारे सारे अमाल राय और बर्बाद हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी तरफ से कोई बात नहीं। जो बातें कर रहा हूं कुरान और सुन्नत से कर रहा हूं। आपके सामने रिवायतें मौजूद हैं, रब का फरमान मौजूद है, वला तुब्तिलू अमालकुम, सारे अमाल बर्बाद। कब होगा? जब हम और आप अल्लाह और उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके हम गैरों की इत्तिबा करेंगे, गैरों के तरीके पर चलेंगे। किसी भी मसले मसाइल में जिसके अंदर इख्तिलाफ है और कुरान कुछ और कह रहा है, नबी कायनात का फरमान कुछ और कह रहा है, आपके उलमा का कौल कुछ और कह रहा है, आपके इम्मा का कौल कुछ और कह रहा है, आप कुरान और सुन्नत को छोड़ करके अपने उलमा के अक़वाल को ले रहे हैं, अपने इम्मा के अक़वाल को ले रहे हैं। गोया कि आप अपने इम्मा को रब बना रहे हैं, अपने इम्मा को रब का दर्जा दे रहे हैं। इसकी भी वज़ाहत अल्लाह ने कुरान के अंदर की। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर कहा कि यहूदी और नसारा ये अपने उलमा को अपना रब बनाते थे, सहाबा ने पूछा था नबी कायनात से, अल्लाह के नबी क्या वो लोग उन्हीं की इबादत करते थे अपने उलमा की? अल्लाह के नबी ने कहा था नहीं, इबादत नहीं करते थे, बल्कि अगर उनके उलमा ने कह दिया कौल सही है, सही मान ली। अल्लाह का फरमान कुछ और है, उलमा का कौल कुछ और है कि ये सही है, आपने सही मान ली। ये गलत है, आपके उलमा ने कह दिया, जबकि अल्लाह का कौल कुछ और कह रहा है, नबी उनके नबी का कौल कुछ और कह रहा है, और उनके नबी के कौल को छोड़ करके उन्होंने अपने उलमा के अक़वाल को मान लिए। तो गोया कि ये अपने उलमा को रब बनाना हुआ। और आज मुसलमानों की अक्सरियत किसी दलदल के अंदर फंसी हुई। मेरे भाइयों, हो सकता है आपको ये बात चुभे, हो सकता है आपको ये बात गलत लगे, लेकिन अल्लाह की कसम संजीदगी से सोचने की जरूरत। अगर कामयाबी चाहते हो मुसलमान, कामयाब अगर होना है, अल्लाह के वास्ते गौर व खोज करो, सही दीन को तलाश करो, अल्लाह के वास्ते अल्लाह की हिदायत को तलाश करो, नबी कायनात के तरीके को तलाश करो। जिस चीज पर नबी का तरीका नहीं होगा, याद रखो हमारे वो अमल मरदूद हो जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अमल जिस पर मेरी मुहर नहीं है, जो मेरा तरीका नहीं है, वो अमल कल क़यामत के दिन रायगा और बर्बाद हो जाएगा। वो अमल मरदूद है, मरदूद है, वो अमल रद्द कर दिया जाएगा। उस अमल की अल्लाह के यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो उलमा के अक़वाल है, वही बात उलमा की इम्मा की, अल्लाह की कसम हमसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। कोई भी शख्स आकर के दावा कर दे कि मैं अपने इम्मा से तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके उलमा का ये कौल है, इमाम अबू हनीफा का ये कौल है कि जो चीज, जो रिवायत मेरे कौल के खिलाफ हो, उन्होंने कहा कि हदीस जो सही हदीस है, जो सही रिवायत है, वही मेरा मज़हब है। और अगर मेरे बात के खिलाफ, अगर तुम्हें कोई नबी के बात के खिलाफ, अल्लाह के कौल के खिलाफ अगर मेरी बात तुम्हें मिलती है, तो मेरे कौल को, मेरी बात को दीवार पर मार दो। यह आपके इम्मा का कौल है। अब क्या कहोगे? क्या कहोगे? आप मोहब्बत करते हो या हम मोहब्बत करते हैं? हम भी बहुत सारे मसाइल में अक़वाल को हुज्जत मानते हैं, जहां पर इख्तिलाफी मसाइल होते, बहुत सारे मसाइल हैं ऐसे जो कुरान और सुन्नत से मुआफ़िक़त रखती है, जिन उलमा का कौल, जिन इम्मा का कौल, हम उनके अक़वाल को लेते हैं, मानते हैं।
ऐसा नहीं कि हम सिरे से बाइकाट किए हों, बिल्कुल हम तो उनसे मोहब्बत करते हैं, हम तो उनके कौल को भी लेते हैं, लेकिन वो कौल जो कुरान और सुन्नत से मुवाफिकत रखती हो, वो कौल जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है, वो अमल जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है, हम ऐसे कौल को अपने किसी सगे के भी जुबान से नहीं लेते। अगर हमारा कोई बाप है, हमारा कोई भाई है, बड़ा अल्लामा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के खिलाफ कोई अमल बता रहा है, अल्लाह की कसम उसका कौल मेरे जूती के नोक पर होगा, उसका कौल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का ये जुबान है कि मैं उसके कौल को अपने जूते के नोक पर रख दूंगा, नहीं लूंगा। ये हमारा मजहब है, ये हमारा मसलक है कि हम उसी चीज को लेते हैं जो कुरान और सुन्नत से मुवाफिकत रखती है, लेकिन जिस चीज के अंदर, जिस अमल के अंदर कुरान और सुन्नत की मुखालिफत हो रही है, हम ऐसे कौल को दीवार पर मार देते हैं, रद्दी के कागज की तरह हम उसको फेंक देते हैं। ऐसे कौल को हमारे पास रखने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं होती। इसलिए मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहिए तो अल्लाह और उसके रसूल की सिर्फ इताअत करो, क्योंकि कुरान और अल्लाह के नबी का फरमान सिर्फ यही गलतियों से पाक है। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, आपने बेशुमार ये मिसाल सुना होगा कि आप 2 चॉकलेट रखते हैं, आपके पास 2 चॉकलेट है, एक नंगा बिल्कुल पड़ा हुआ है चॉकलेट, वो उसके ऊपर कोई थैली वैली नहीं लगी हुई है, एक पैक है बिल्कुल। आप कौन सा खाना पसंद करोगे? जिसके पास चूटियां भिनभिना रही है, मक्खियां जिसके पास भिनभिना रही है, चूटियों ने उसको अपना मस्कन बनाने का, अपना भोजन बनाने का इरादा कर लिया है, आप उसको लोगे, उसको उठा करके उसको साफ करके खाओगे, या आपके पास जो सही सलामत मौजूद है आप उसको खाओगे? ये गौर करने की जरूरत है मिसाल पे मेरे भाई। कुरान और सुन्नत बिल्कुल साफ और शफाफ, उसके पास कोई कीड़ा नहीं, उसके अंदर कोई खलल नहीं, उसके अंदर रत्ती बराबर, जर्रा बराबर कोई कमी नहीं है। इसलिए हमें दूसरों के अक़वाल को, दूसरों की तकलीफ के बजाय हमें कुरान और सुन्नत को फॉलो करने की जरूरत है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम कुरान और सुन्नत ही के इत्तिबा क्यों करें? क्योंकि आपने सुना होगा हज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि फाक़िलू अय्युहन नास क़ौली, कि लोगों मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ लो। अल्लाह के नबी ने कहा था फ़इन्नी क़द बल्लग़तु, जो दीन रब्बे कायनात की तरफ से मेरे ऊपर नाज़िल किया गया था मैंने वो आप तक पहुंचा दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा वक़द तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, लोगों सुन लो, मैं 2 चीजों को तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूं। क्यों कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करनी है? हदीस पर गौर करो। अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर सहाबाए किराम से ये कहा कि वक़द तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, लोगों 2 चीजें मैं तुम्हारे पास छोड़ करके जा रहा हूं, लम तदिल्लु बादहु अन तमस्सक्तुम बिही, कि लोगों तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे अगर तुम इसको अच्छी तरीके से मजबूती से पकड़ लोगे, मजबूती से थाम लोगे, इसी पर अपनी जिंदगी गुजारोगे, इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे, तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत की, वो 2 चीजें कौन सी? अल्लाह के नबी ने फरमाया किताबुल्लाही व सुन्नति रसूलिही, अल्लाह की किताब है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा है। अगर इन दोनों चीजों को पकड़े रहोगे, इन दोनों चीजों को मजबूती से थाम लोगे, इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे, ऐ लोगों कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते, कभी भी तुम राह हिदायत से भटक नहीं सकते। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का चैलेंज है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैलेंज है कि आप कभी भी गुमराह नहीं हो सकते अगर आपने इन दोनों चीजों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार ली। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम इन दोनों चीजों की इत्तिबा इसलिए भी करते हैं और सिर्फ इसी की इत्तिबा इसलिए करेंगे क्योंकि इसके अंदर कभी भी कोई बातिल चीज दाखिल नहीं हो सकती। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल लज़ीना कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, के लोगों जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र का इनकार किया, कुफ्र किया जो उनके पास आया था, और हालांकि वो इतनी जबरदस्त किताब है, अल्लाह ने कहा ये ऐसी किताब है ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही। मुसलमानों सुन लो,
اے اس امت کے لوگوں سن لو، اللہ نے کہا یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر نہ دائیں طرف سے کوئی باطل آ کر کے اس میں گھس سکتا ہے، نہ بائیں طرف سے کوئی باطل اس کے اندر گھس سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی بھی طرف سے کوئی غلط چیز قرآن و سنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا فرمان جس کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ سب سے عزیز کتاب ہے، اس کے اندر کبھی بھی باطل کا رجحان ہو ہی نہیں سکتا، ایک بھی چیز غلط اس کے اندر گھس ہی نہیں سکتی ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کر کے آج غیروں کی عبادت، آج غیروں کی اتباع کر رہے ہیں، غیروں کی تقلید کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہمیں اس چیز سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے بھائی کو یہی قرآن و سنت، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہی صراط مستقیم، قرآن و سنت ہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ یہی ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے بعد اس کے اندر ٹیڑھے میڑھے کئی لکیر کھینچ دیے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے میرے صحابہ یہی سیدھا راستہ، جو سیدھی لکیر اللہ کے نبی نے کھینچی تھی، کیا کہا یہی سیدھا راستہ ہے، اور جو ٹیڑھا میڑھا ہے یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ لوگوں تم اسی راستے کی اتباع کرو جو راستہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کر کے اپنے صحابہ کو کہا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کی تمہیں اتباع کرنی ہے۔ اور اللہ نے کہا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہی تمہارے لیے وصیت ہے، یہی تمہارے لیے پیغام ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانو گے، اسی راستے کی پیروی کرو گے جو ہدایت کا راستہ ہے، یعنی قرآن و سنت، اگر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ آ جائے اور تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ طبیعت بھی ناساز تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق سے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اتنا بولنے کی جسارت دی۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین اس کائنات ارضی کے اندر جتنے لوگ بھی بیمار ہیں تو انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ۔ الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أولى وأجل وأتم وأعم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔